इज महाबलेश्वर वर्थ स्पेंडिंग अ लॉन्ग वेकेशन? अगर हर सुबह, हर शाम, हर रात सुनहरा रंग हर तरफ नजर आए तो क्यों नहीं? यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू अनवाइंड। सर्दियां आ गई हैं तो मैं भी परिंदा हूँ, holding a hot cup of tea or a coffee and watching a home that looks as if out of a fairyland. It fills my world with sunshine. Greetings for the Christmas season. Myself Namita and welcome back to my family travel vlog on how I spent my day 2 in Mahabaleshwar, a queen of hills after lockdown 2020. Do check out my previous vlog of day 1 Mahabaleshwar to feel more connected and for my upcoming vlogs. Also do check out my vlog on Sivagat Fort after lockdown. I'll provide all the relevant links in my video description. If you have been following me, lots of love to you all. If not, then do take a moment to subscribe to my channel for my upcoming vlogs. Stay tuned. After early breakfast, we moved on for sightseeing. हमारा डे 2 का प्लान था to visit old temples like Atibaleshwar, Mahabaleshwar, Panchganga and Krishna temples, have lunch at popular heritage Dina Hotel, go for a long nature walk at Lord Big Point, Elephant's Head and return back early evening at our resort to celebrate a quiet Christmas. कैसा लग रहा है अभी? आज फ्रेश है ना? खाना पीना खाया है, लोटेड है, थके भी नहीं है। नहीं, जब चाहिए होगा तो I'll tell you. Once again, we took old Mahabaleshwar road. यहाँ फील होता है मानो 50 साल पीछे चले गए हैं। It is a narrow road covered with dense forest. In broad daylight as well, light could hardly reach the ground. It is a scenic beauty. However, an absolute scare after sunset. काफी लोगों को नेचर वॉक यहाँ अच्छा लगता है। हमें पार्किंग टेम्पल प्रीमाइसेस में मिल गई, जहाँ 3 टेम्पल सिंगल गो में हो जाते हैं, Atibaleshwar, Mahabaleshwar and Panchganga temples. Krishnabai temple is also few meters away at a walking distance from these temples. Snacking and shopping के लिए भी यहाँ काफी options है। महाबलेश्वर टेम्पल में भीड़ ज्यादा होती है compared to Atibaleshwar temple. यहाँ सेल्फ सर्विस है for keeping your shoes outside temple. यहाँ शूज रख के सारे टेम्पल्स एक ही बार में कर सकते हैं। काफी क्राउड था यहाँ और सोशल डिस्टेंसिंग इतना फॉलो नहीं हो रहा था। हम पूरी कोशिश कर रहे थे टू फॉलो द रूल्स बाय स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस साइंस। आई वॉज प्राउड टू सी दैट माई बेबी वॉज ऑल्सो फॉलोइंग दीज रूल्स। जल्दी ही ऑफिशियल्स ने कंटिन्यूस अनाउंसमेंट शुरू कर दी एंड फिर सभी ने रूल्स फॉलो किए। लाइन जल्दी ही क्लियर हो गई और हम 30 मिनट्स में फ्री हो गए। टेम्पल की स्टोरी वॉल्स पर लिखी गई है और काफी इंटरेस्टिंग है। It talks about 2 brothers, Atibal and Mahabal, and how they were defeated by gods, which was beyond impossible. ये मंदिर 800 years पुराना है and शिवलिंग is almost 1000 years old. किंग शिवाजी की भी बहुत अच्छी स्टोरी है यहाँ पर। Outside Atibaleshwar temple, there is a small shop that sells handicrafts and unique items. By the way, फोटोग्राफी मंदिर में प्रोहिबिटेड थी, इसलिए मैं और कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। आती हूँ इस शॉप में, यहाँ पे काफी सारे आइटम्स हमें हाईली ओके लगे और हमने वही आइटम चूज किया जो थोड़ा यूनिक लगा। बाय द वे, इस शॉप में रेट्स थोड़ा हाई है बट प्रोडक्ट्स आर गुड। अतिबलेश्वर टेम्पल इज हार्डली 1 मिनट फ्रॉम हियर। ये मंदिर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट हम पहुंचे पंचगंगा टेम्पल में, वो भी हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। पहली बार इस टेम्पल को देख ऐसा लगा मानो नेपाल में आ गई हूँ। इस टेम्पल का बिल्ड ही कुछ ऐसा है। यहाँ भी फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी एंड आई हैड टू स्टोर माई मोबाइल अवे। ये टेम्पल एक मस्ट विजिट साइट है। It is located right at the point where the 5 rivers Krishna, Savitri, Koyna, Veena and Gayatri merged. This magnificent temple has a splendidly carved Gomukhi. From the foot of the Gomukhi, the 5 rivers start flowing.
After having some refreshments, we walk to Krishnabai temple. It's a lovely nature trail walk through the charming woods to reach the hilltop. Its quaint charm makes it one of the biggest attractions for travelers. Peaceful and serene. ये टेम्पल आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का है एंड माना जाता है कि पांड्य कालीन है। यहाँ काफी लोग वेडिंग फोटोशूट के लिए आते हैं और इसलिए अब अथॉरिटीज ने ये एक्टिविटी यहाँ प्रोहिबिट कर दी है। ऑन द वे हमें एक स्मॉल स्ट्रॉबेरी फार्म भी नजर आया। आई एम नॉट श्योर इफ प्लकिंग इज अलाउड ओवर हियर। The ancient shivling is huge and stands noble. It is beautifully carved from a single stone. बच्चों को एडवेंचरस लगता है टू जस्ट सिट ओवर हियर एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द गोमुख, द फेस ऑफ काउ, थ्रू विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम द टेम्पल टू द कृष्णा रिवर. This beautiful temple is nestled on a hilltop, offering breathtaking views of the gorgeous Krishna Valley. कहा जाता है कि यहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन हुआ था. It's a scenic beauty. मॉनसून्स में ये और भी ब्यूटीफुल लगता है. मंदिर के पास से ही एक छोटा वाटरफॉल भी बनता है. You will feel as if you are back in time. The temple has intricate and interesting carvings, but unfortunately, most of them are decaying with time. I felt so free sitting out over here, while the surrounding calmness of the temple soothed my soul. देखो ना देखो ना देवांश कम है तू क्या उल्टे जब माफ करोगे इधर मत वाले भगवान के फोटो बोल रहा था नागराज. लंच का टाइम हो गया एंड वी वर सुपर स्टार्व्ड. मेरे एक खास दोस्त ने डीना होटल सजेस्ट किया था एंड ही स्पोक हाईली अबाउट इट. एज प्लान्ड वी वेंट टू डीना होटल डायरेक्टली. यह बुकिंग करके आना ज्यादा बेहतर होता है, सो यू गेट अ सीट ऑफ योर चॉइस. हाउएवर ओनर्स ने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया एंड दे ऑफर्ड अस अ लवली सीट विद अ ब्यूटीफुल वैली व्यू.
Management here takes personal care to offer excellent service. We decided to roam the heritage property, which has a garden with exotic variety of flowers. Their clientele consists of many corporate and Bollywood celebrities. This place should be on your to-do list whenever you visit Mahabaleshwar. Dina Hotel एक heritage boutique beauty है. It's a Pasi hotel since 1903. It has a lots of interesting stories to tell. यहाँ के ओनर का कहना है कि उनका होटल इंडिया से भी पुराना है, which is true. उन्होंने अपना कल्चर एंड हेरिटेज प्रॉपर्टी का बखूबी ख्याल रखा है. Dina Hotel has fixed menu and caters to veg and non-veg delicacies. My friend was right. The food served was an absolute delight. मेरा सबसे फेवरेट बना pumpkin soup, a delectable Scotch eggs and a divinely flavorful chicken berry pulao. It was simply perfect. जब भी यहाँ आओ तो पूरे खाली पेट ही आना. ओवर ईटिंग तो हो ही जाती है. लॉपिट पॉइंट जाने के लिए भी जो रास्ता हमने चूज किया था वो भी काफी नैरो था. बाय द वे वो एक ही रास्ता था, सो वी हैड नो ऑप्शन. यहाँ एक ही कार जाने का रास्ता था एंड हेंस वी वर एक्सट्रीमली केयरफुल एंड विजिलेंट व्हाइल ड्राइविंग अपहिल. लॉर्डविक पॉइंट को पहले सिडनी पॉइंट भी कहा जाता था एंड इट हैज 2 पॉइंट्स, लॉर्डविक एज वेल एज एलिफेंट्स हेड पॉइंट. आई सिंपली लव्ड द सूदिंग नेचर ट्रेल वॉक ओवर हियर. ये सबसे बेस्ट थिंग थी. ऐसा लग रहा था कि रास्ता खत्म ही ना हो. पूरे वैष्णो माता जाने के रास्ते जैसा फील हो रहा था. इट हैड पेव्ड रोड्स एट सर्टेन पॉइंट्स एंड वाज कवर्ड विद इम्पेनेट्रेबल डेंस फॉरेस्ट्स. जितनी ओवर ईटिंग डीना होटल में हुई थी वो सब यहाँ डाइजेस्ट हो गई. गुड फॉर अस. लॉर्डविक पॉइंट वाज रीक्रिस्टेंड इन द ऑनर ऑफ जनरल लॉर्डविक, जो फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर थे टू क्लाइम द हिल इन अप्रैल 1824. टू ऑनर हिम हिज सन इरेक्टेड अ मेमोरियल पोल ऑफ अबाउट 25 feet. ये टावर स्ट्रक डाउन हुआ था बाय लाइटनिंग इन अराउंड 1973 एंड वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द महाबलेश्वर होटल्स एसोसिएशन. बाय द वे वन ऑफ देम वाज द फेमस एंड पॉपुलर डीना होटल, along with the safety railings leading to the Elephant's Head. This point offers unmatched views of the Pratapgarh Fort and Elphinstone Point at a distance and is a crowd puller. यह crowd काफी था and we plan to enjoy an unhindered sunset. Elephant's Head Point is at the extreme end and lies parallelly and beyond Lordwick Point. एडवेंचर का मजा तो लेना था तो हमने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया फ्रॉम लॉर्डविक्स पॉइंट टू रीच एलिफेंट हेड क्विकली. ये हिल एक एलिफेंट की हेड के जैसे नजर आता है. माइंड यू, फ्रॉम दिस पॉइंट एलिफेंट हेड नजर नहीं आता. हमने लॉर्डविक पॉइंट का हर एक कोना छान मार लिया टू सी इट्स हेड, बट इन वेन. However, on day 4, unexpectedly we saw Elephant's Head from another vantage point. Stay tuned for this vlog. Elephant's Head Point renders breathtaking panoramic view of the valley. हम कुछ ही पिक्स यहाँ क्लिक कर पाए क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था
और कुछ लोग कुछ डेंजरस स्टंट्स भी कर रहे थे to get the best pic. We moved back to Longview Point and waited patiently to see the magnificent beauty of the sun. Shooting a time-lapse of sunset at Longview Point was so much fun. Watching a sunset is like observing an amazing and incredible creation of the nature, a source of warmth and hope. Evening में भी we were all charged up. शायद टेम्पल्स की पॉजिटिव एनर्जी थी या सनसेट का मैजिक, we may never know. हमने स्पेंड किया अपना 25 दिसंबर 2020 सेलिब्रेशन विद फैमिली इन आवर रिसोर्ट रूम विद सम माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज। मैं अपने साथ ले आई थी अपना प्यारा सा पोर्टेबल साउंड ड्रम फ्रॉम पोर्ट्रॉनिक्स दैट हैज ब्लूटूथ, रेडियो FM, built-in mic with 6 to 7 hours of playback time. Good food, good music created a festive mood. Day 3 was going to be even more exciting. We plan to explore a new location and be water babies. Stay tuned for my next vlog on how I spent my third day in Mahabaleshwar. Till then, take care.